Hare Krishna, dear devotees. It's our first time in Ujjain. It's very, very nice to be with all of you. तो हम पहली बार उज्जैन आए हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है. Actually, quite a few devotees from Ujjain came to South Africa this year. इस वर्ष बहुत सारे भक्त साउथ अफ्रीका आए हैं उज्जैन से. And it's because of their mercy that we were able to be here this trip. So we're very grateful to और them. उनकी कृपा से हम लोग यहाँ पर आ पाए. Just like my brother was saying, I am also very embarrassed to be speaking in front of all of you, my senior devotees who I really look up to and aspire to. तो मैं मेरे भाई की तरह, मेरे भ्राता की तरह मैं भी यहाँ पर बहुत शर्म महसूस कर रहा हूँ, लज्जा महसूस कर रहा हूँ कि जिन भक्तों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ. But I'm also very grateful to Krishna Keshava Prabhu for forcing me to meditate on my good fortune. लेकिन फिर भी मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे बोलने का अवसर दिया गया. My good fortune was actually created by my parents. तो मेरे सौभाग्य की शुरुआत हुई मेरे पिता माता से. In the late 80s, there was tough times in ISKCON with gurus falling. 80 के दशक के अंत में इस्कॉन के लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी जब बहुत सारे गुरुओं को आध्यात्मिक असुविधा हो रही थी. My father was a brahmachari in Shri Shri Radharatna Temple in Durban. उस समय मेरे पिताजी राधा राधानाथ मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे. And he had two gurus who fell down also. और उनके दो गुरुओं से जिन्होंने उनमें आश्रय लिया था उनको आध्यात्मिक असुविधाएं हो गई थी. So in 1988, he was in Mayapur and read an interview by Mukunda Maharaj, who was interviewing Bhakti Swami. तो 1988 में वो मायापुर गए और मेरे पिताजी ने एक इंटरव्यू पढ़ा जो कि मुकुंद महाराज ने गुरु महाराज का लिया था. And he felt that in difficult times, leaders of ISKCON were looking to His Holiness Bhakticharya Swami for guidance. और उनका पहला अनुभव ये हुआ कि ऐसी कठिन परिस्थिति में जो इस्कॉन के नेतृत्व गण करने वाले भक्त थे वो गुरु महाराज की ओर आशा की किरण खोज रहे थे. And so he was very inspired and wrote to Maharaj to ask him to come to South Africa. तो उनको बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने गुरु महाराज को लिखा कि आपको साउथ अफ्रीका आना चाहिए. Maharaj replied, actually, if you look at my passport, it says valid for all countries except South Africa. तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ है आप किसी भी देश में जा सकते हो केवल साउथ अफ्रीका छोड़कर. Because it was during apartheid, so the Indian government forbid Indian citizens from visiting in solidarity. तो उस समय पर apartheid था जहाँ भेदभाव बहुत ज्यादा था, गोरे काले ब्राउन सब अलग अलग रहते थे, तो भारतीय सरकार ने भारतीयों को वहाँ भेजने से पाबंदी लगाई हुई थी. But thankfully another Prabhupada disciple, His Grace Shyamala Prabhu, who is Bengali, was living in South Africa. और हमारे बीच में एक साउथ अफ्रीका में एक प्रभुपाद के शिष्य थे जो बंगाली परिवार से ही थे जिनका नाम था श्यामलाल प्रभु. And so he knew how to make a plan. तो उनको पता था कैसे जुगाड़ लगानी है. And so in May 1989, His Holiness Bhakti Swami first came to South Africa. तो मई महीने में 1990 में गुरु महाराज प्रथम बार साउथ अफ्रीका गए. When Maharaj came to South Africa, my father was actually bedridden in hospital with arthritis. तो उस समय पर मेरे पिताजी को आर्थराइटिस की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था. And soon after arriving, Maharaj came to the hospital to see him. और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका में आए तो सबसे पहले वो मेरे पिता को देखने के लिए अस्पताल में गए. And that left a very wonderful impression in the hearts of both of my parents. तो मेरे पिता माता के हृदय में बहुत ही हृदयस्पर्शी एक अनुभव रहा, उनका प्रथम अनुभव. Because they described that at that time, that level of personal love and affection wasn't there with leadership. तो उस समय पर इस्कॉन के जो नेतृत्व करने वाले भक्त थे उनके भीतर इस तरह व्यक्तिगत प्रेम का अनुभव करना बहुत बहुत दुर्लभ था. And so Maharaj really won the hearts of many devotees who were feeling despondent. तो उस समय पर जो भक्त निराश हुए थे जिन्होंने अपनी आशा खो दी थी उन भक्तों के लिए गुरु महाराज एक प्रेरणा के स्रोत बने. And so they found solace तो उनके and took initiation. उनके हृदय को बहुत शांति मिली, सुकून मिला, संतुष्टि मिली और उन्होंने उनसे दीक्षा ली. So that environment created my good fortune.
तो उस प्रकार से मेरा भी भाग्य का उदय हुआ। When I was born, my parents were still living in the temple. जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता-पिता दोनों मंदिर में ही रहा करते थे। My mom describes that I was a bit late in being born, so I was 1 week delayed. तो मेरा जन्म 1 हफ्ते थोड़ा डिले हो गया था, जिस महीने में होना चाहिए था उससे देर में हुआ। And so I had to be induced. तो किसी कृत्रिम रूप से मेरा जन्म कराया गया। And so when they asked His Holiness Bhakti Swami to give me a name, he thought this is very similar to the past time that Balaram moved. He had to be induced from Devaki to Rohini. तो गुरु महाराज को जब नाम पूछा गया कि इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, तो गुरु महाराज ने बोला जिस तरह संकर्षण को भी आकर्षित करके निकालना पड़ा था, उसी प्रकार ये बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका नाम रखना चाहिए संकर्षण। Maharaj also fed my first grain. So at 6 months, he gave me my first grain. 6 महीने के बाद गुरु महाराज ने मेरा अन्नप्राशन भी किया। And during that ceremony, the baby has to choose between money and Bhagavatam. उस समय पर दोनों विकल्प होते हैं, बच्चा धन को भी चुन सकता है और भागवत को भी चुन सकता है। Any guesses which one I chose? तो कोई तुक्का लगाना चाहेगा मैंने क्या चूज किया? Actually, I couldn't walk or crawl. I couldn't move. तो मैं इतना छोटा था कि ना मैं रेंग पाया ना मैं आगे बढ़ पाया। So Maharaj picked me up and placed me on the Bhagavatam. गुरु महाराज ने मुझे उठाया और भागवतम के ऊपर रख दिया। I have a picture. I'm holding the Bhagavatam. Maharaj is holding me and I'm looking at it. मेरे पास वो चित्र भी है जहाँ मैं भागवतम को पकड़ रहा हूँ और महाराज ने मुझे पकड़ा हुआ है। So in the same way, I don't have any qualification, but thanks to mercy of the Vaishnavas, we get to experience Krishna consciousness. तो यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन ये भक्तों की कृपा ही है कि हम लोग भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। Even if we don't know what's good for us, they still make. यद्यपि हमें पता नहीं होता है कि हमारी भक्ति में क्या अच्छा है, लेकिन भक्त लोग हमें फिर भी आगे बढ़ाते हैं। When I think of Bhakticharya Swami, I see the purport to Prabhupada explaining what a pure devotee is. मैं जब महाराज के बारे में चिंतन करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि श्रील प्रभुपाद की जो शुद्ध भक्त की व्याख्या है, वो महाराज के ऊपर सटीक बैठती है। Prabhupada described a good devotee, a pure devotee, as being a perfect gentleman. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त एक सबसे ज्यादा भद्र व्यक्ति है। My brother and I went to English boys' high schools. तो मेरे भाई और मैं दोनों इंग्लिश बॉयज स्कूल में पढ़ाई करे हैं। And so they try to teach us about being a gentleman. तो वहाँ पर ये भद्र व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है। You open the door for women. तो जब कोई महिला आए आपको गेट खोलना चाहिए। You respect your elders. आपको अपने वरिष्ठों का आदर करना चाहिए। You greet strangers. आप अगर अपरिचित लोगों से भी मिले तो उनको अभिवादन करें। And so when you think of a perfect gentleman, it's easy to not really understand what Prabhupada meant. तो अगर हम प्रभुपाद के इस निर्देश को कि भक्त एक भद्र व्यक्ति है, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है। But being with and learning from His Holiness Bhakticharya Swami, you can understand. लेकिन केवल और केवल गुरु महाराज के चिंतन करके उनके साथ संग करके व्यक्ति समझ सकता है कि एक भद्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए। The way Maharaj dresses, the way he smiles, the way he laughs, the way he speaks, the way he interacts with everyone. तो जिस तरह वो वेशभूषा पहनते थे, जिस तरह वो मुस्कुराते थे, जिस तरह बातचीत करते थे, जिस तरह वो लोगों के साथ आदान प्रदान करते थे, Dignified, cultured Vaishnav. वो बहुत ही एक शिष्टाचारी कल्चरल व्यक्ति थे। And so natural also. और बहुत ही स्वाभाविक थे, सरल थे। So although I don't have the definition of a perfect gentleman, there's a few characteristics or traits that come to mind when I think of how I've interacted with Maharaj. तो यद्यपि एक भद्र व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सूचीबद्ध किए हैं। Broad-minded. एक तो है दूरदर्शिता, philosophically astute, सिद्धांत के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, completely surrendered to Srila Prabhupada, श्रील प्रभुपाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, accomplished musician, एक बहुत ही दक्ष संगीतकार, and affectionate and loving.
और बहुत ही प्रेममय और बहुत ही कृपामय। So I'd like to share a few interactions to discuss these तो मैं characteristics. कुछ अनुभव बताऊंगा इन गुणों को उजागर करने के लिए। Maharaj organized a very interesting program in South Africa called the Vedic Lifestyle Expo. तो महाराज ने एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम शुरू किया था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था वैदिक लाइफस्टाइल एक्सपो। And in this, he had various speakers, experts come to South Africa and discuss a few topics. तो उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग वक्ताओं को बुलाया था साउथ अफ्रीका में अलग-अलग विषयों पे प्रवचन देने के लिए। Vastu, Ayurveda, Yoga, and Vedic archaeology. तो ये सारे विषयों पर बोलने के लिए अलग-अलग वक्ताओं को बुलाया था। It was a very interesting presentation because a presentation of its kind hadn't been done before. ये एक बहुत ही अलग प्रकार की एक व्यवस्था थी क्योंकि ऐसा कुछ कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ था। Maharaj's mood wasn't to bring in new people and have them join the temple and chant 16 rounds. महाराज केवल ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसे जैसे भक्त पकड़ो और 16 माला कराओ। Rather, he was creating an environment where people felt comfortable to be associated with Vedic culture. लेकिन वो चाहते थे कि लोग आएं और वैदिक संस्कृति को जानें, उस वैदिक संस्कृति का पालन करें। Because in South Africa, it is quite foreign. क्योंकि साउथ अफ्रीका एक पाश्चात्य देश जैसा ही है। Even South African Indians have been in South Africa for many generations and have lost touch. जो भारतीय भी साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बसे हुए हैं, तो उन्होंने अपना वैदिक संस्कृति से पूरा अनुभव खो चुके हैं। So Maharaj brought the best of Vedic culture and gave that to us. तो उन्होंने वैदिक सभ्यता की पराकाष्ठा को साउथ अफ्रीका में दर्शाया। Actually, after the Vedic Lifestyle Expo, Maharaj went to South India with the Ayurvedic doctor for some treatment. तो वो कार्यक्रम के बाद महाराज साउथ इंडिया गए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। And I believe that's where he got the idea to have an Ayurvedic clinic in और Ujjain. वहीं से उनको ये आइडिया आया कि उज्जैन में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक होना चाहिए। In a similar way, we helped Maharaj organize a program with the local government. उसी तरह हमारा एक और कार्यक्रम करा गया था जहां पर हमने स्थानीय सरकार के कुछ प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम किया था to discuss the topic of social cohesion. तो उस समय पर कैसे समाज में एक साथ रहा जाए, अलग-अलग वर्ग के लोग भी एक साथ समन्वय में रहें, इसी विषय पे कार्यक्रम था। A legacy problem in South Africa is you have very different cultures who are historically segregated, who now need to be integrated into a harmonious society. ऐतिहासिक रूप से साउथ अफ्रीका में ऐसी परिस्थिति है कि अलग-अलग समुदाय अलग-अलग रहते हैं और अभी ऐसी जरूरत है कि उन सबको एक साथ लाया जाए। And so Maharaj naturally understood that that's no different to anywhere else in the world. और महाराज ने ये समझा कि वास्तव में ये पूरे विश्व की ही समस्या है। We're all falsely identifying with our temporary material bodies. क्योंकि हम सभी शारीरिक चेतना में ग्रसित हैं। And on the platform of the soul, we're all the same. और आत्मा के स्तर पर हम सब एक जैसे ही हैं। And so Maharaj is very interested in contributing to the South African political landscape with this understanding. तो महाराज साउथ अफ्रीका के राजनीतिक इस कार्य में भी सहयोग देना चाहते थे जहां पूरे के पूरे नागरिकों को एक साथ लाया जा सके। That naturally we are all equal and naturally we are all servants of God. क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम सब एक जैसे हैं और भगवान के नित्य दास हैं। And in this position there can be no conflict. और अगर ये अनुभव रहेगा, ये साक्षात्कार रहेगा तो वहां पर कोई भी विवाद नहीं होंगे। So Maharaj was very broad-minded. तो उनकी बहुत दूरदर्शिता थी। Also Maharaj combined with broad-mindedness because it's easy to be broad-minded but then not serious. लेकिन इसमें एक और समस्या है कि कोई दूरदर्शिता के नाम पर कृष्ण भक्ति को डाइल्यूट भी कर सकता है। Maharaj is very philosophically astute. लेकिन महाराज का बहुत सिद्धांतिक निष्ठा भी बहुत प्रगाढ़ थी। To translate Srila Prabhupada's books into Bengali is a very wonderful service. श्रील प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को बांग्ला भाषा में अनुवाद करना एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली सेवा है। And by interacting with Maharaj, you could see that philosophy come to life. और केवल गुरु महाराज के साथ संगति करने से आप वो सारे सिद्धांत स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। My brother was mentioning that we had many retreats in South Africa in the mountains. मेरे भाई वर्णन कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका में हमारी बहुत सारी रिट्रीट्स हुआ करती थी। Maharaj arranged these retreats because he said, I come all the way to South Africa
It's very hard for me to see all of you. So why don't we go to one place and you all come and see me? तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि महाराज बोलते थे कि मैं इतनी दूर से साउथ अफ्रीका आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक भक्त से मिल सकूं, तो क्यों ना मैं एक जगह पर जाऊं और आप सब आ जाइए, वहां पर हम लोग एक साथ संगति कर सकते हैं। In one of the first retreats, Maharaj spoke about the Shikshastakam. और पहली रिट्रीट जो साउथ अफ्रीका में हुई, उसमें महाराज ने शिक्षा अष्टकम पे प्रवचन दिया। And later he started speaking Mahabharata and Ramayana. और उसके बाद उन्होंने महाभारत और रामायण के ऊपर भी सेमिनार दिए। And he said, you know, when we come together in these retreats, we talk for a few days, and just speaking philosophy can be quite boring. और महाराज बोलते थे कि अगर हम लोग एक साथ आएंगे और केवल सिद्धांतिक चर्चाएं करेंगे तो ये बहुत ही बोरिंग हो सकता है। So better to talk stories. इसलिए लीलाओं की चर्चा होना आवश्यक है। Like my brother was saying also, when Maharaj spoke philosophy, he made it easy to understand. जैसे कि मेरे भ्राता भी बता रहे थे कि कैसे जब वो सिद्धांत को भी समझाते थे तो बड़ा सरलता से सहजता से समझाते थे। But he was also so kind and loving that whenever he spoke, you didn't even feel the need to argue. You felt that this was the truth. और वो जिस सहजता से समझाते थे, कभी मन में ऐसे आते ही नहीं था कि इनके साथ द्वंद्व करें, विवाद करें। ऐसा लगता था जो ये बोल रहे हैं बस स्वीकार करते जाओ। Maharaj was loving and also strict. लेकिन प्रेम देने के साथ साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। When he introduced every evening, we'll speak about Srila Prabhupada. He was very strict that we wrote down what we were going to say and that we stick to the time limit. तो जब वो संध्याकालीन सत्र आयोजित करते थे जहाँ सभी भक्तों को प्रभुपाद के विषय में बोलना होता था, तो वो अपेक्षा करते थे कि सभी भक्त लिख करके लेकर के आए और समय सीमा का ध्यान दें। He was very serious that we develop a personal relationship with Srila Prabhupada. तो वो बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेते थे कि सारे भक्त प्रभुपाद से अपने संबंध को महसूस करें। And we don't take it for granted. और हम उसको बहुत सहजता से ना लें। He was also very considerate of everyone's time because there were so many devotees. और वो हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि सबको समय मिले, सभी की समय सीमा का ध्यान रखते थे। And sometimes when a devotee would go over time, he would stop them. और कभी कोई भक्त ज्यादा समय लेता था तो बीच में उसको रोक भी देते थे। But Maharaj couldn't help but being sweet, so whenever there was a senior devotee, he let them speak. लेकिन वो इतने मधुर थे कि कभी कोई वरिष्ठ भक्त ज्यादा समय लेता था तो फिर उसको नहीं भी रोकते थे। I was also very fortunate that I was able to travel with Maharaj in New York. मेरा एक और सौभाग्य है कि मैं महाराज के साथ न्यूयॉर्क यात्रा पर गया था। And growing up, hearing Maharaj speak about Srila Prabhupada, I was able then to travel to 26 Second Avenue, to Tompkins Square Park. और बचपन से जो मैंने महाराज से प्रभुपाद के विषय में श्रवण किया था, मैं महाराज के साथ 26 सेकंड एवेन्यू, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, न्यूयॉर्क में गया था। We also did some kirtan programs at a yoga studio with Achutya Gopi and Ananta. और वहाँ पर चित्रगोपी माता जी अन्यथा अलग-अलग भक्तों के साथ हमने कीर्तन प्रोग्राम भी किया था। We went to the temple in Tobacco in New Jersey. और हम टोबाको न्यू जर्सी मंदिर में भी गए थे। And also to some house programs. और हमने कुछ घरों में भी कार्यक्रम किए। हरी हरी। Yes. I just finished a conference, and so we ended up being in New York together at the same time. तो ऐसा कुछ आयोजन था कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ गया था और वो जैसी समाप्त हुई तो मैं न्यूयॉर्क में महाराज के साथ था। And I was so tired. और मैं इतना थका हुआ था। And whenever we went to a house program, it was my first time walking in with Maharaj. तो जब भी हम किसी घर में कार्यक्रम के लिए जाते थे तो मेरा पहली बार था जब मैं महाराज के साथ किसी कार्यक्रम में जा रहा था। Up until then, I only experienced welcoming Maharaj. इससे पहले मेरा अनुभव यही था कि हम महाराज का स्वागत किया करते थे। पहला अनुभव था कि मैं महाराज के साथ जा रहा था। And you know, when you welcome Maharaj, you're so excited. और हमें पता है कि जब महाराज का स्वागत करते हैं तो हम बहुत उत्साह से भरे होते हैं। You offer flowers, you have foot bathing, हम लोग आरती. फूल चढ़ाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, आरती करते हैं। And it's so blissful knowing that Maharaj is finally with you. और ये बहुत ही आनंद देता था कि महाराज उसको सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं प्रेम से। When I was
with Maharaj visiting these house programs, I also knew how tired he was. लेकिन जब मैं महाराज के साथ इन कार्यक्रमों में गया तो मुझे अनुभव हुआ कि वो पहले से कितने थके हुए रहते थे And it made me realize what an austerity it was to travel and preach. और तब मुझे साक्षात्कार हुआ कि कितनी कठिन तपस्या है भ्रमण करके प्रचार करना That it wasn't easy and blissful and ecstatic like I thought. वो ऐसा बहुत मजेदार आनंदमय अनुभव नहीं था जैसे मैं पहले सोचा करता था And it took deep commitment and every ounce of energy to keep to it. और इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय व्रत की आवश्यकता है कि अपनी एक शक्ति के कण को प्रभुपाद की सेवा में लगाना I knew it wasn't something I could do. मैं ये कम से कम नहीं कर सकता And it gave me even more appreciation for what Maharaj has done for us. उस प्रकार से मेरे अंदर महाराज के प्रति और सम्मान जागृत हो गया So we were mentioning earlier that Maharaj was so loving and compassionate. हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कैसे महाराज बहुत प्रेम से स्नेह से व्यवहार करते थे And I was fortunate to have been with Maharaj in Kirtan and Bhajan all my life. तो मेरा बहुत सौभाग्य था कि जब भी कीर्तन और भजन का अवसर होता था तो मैं महाराज के साथ ही रहता था During the retreats, somehow, even as a child, I played mridanga. जब भी रिट्रीट होती थी बाल्यकाल से ही मैं मृदंग बजाया करता था And Maharaj's big smile made me think I was a very good mridanga player. और जब महाराज मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते थे मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत बड़ा मृदंग बजाने वाला हूँ We were singing a bhajan and playing two beat, dotal. तो हम दो ताल बजाया करते थे महाराज के भजन में And because Maharaj smiled, I thought I could play. और क्योंकि महाराज मुस्कुरा करके देखते थे मुझे लगता था बहुत अच्छा बजा रहा है When I was in New York, I stayed at the Bhakti Center with the brahmacharis. फिर बाद में मैं न्यूयॉर्क में भक्ति सेंटर में ब्रह्मचारियों के साथ रहा And we had some kirtan, and I thought, okay, I can play mridanga. वहां पर एक कीर्तन का आयोजन हुआ तो मैंने मृदंग पकड़ ली कि मैं बजाऊंगा And the kirtan leader asked me to stop. और वहां के कीर्तन के लीडर ने मुझे बंद करने के लिए बोला And so even then, I could understand how merciful Maharaj was. सब मुझे साक्षात्कार हुआ कि महाराज कितने कृपावान थे It happened again in LA दोबारा ये लॉस एंजलिस की घटना है about 10 years later. 10 साल बाद I thought, okay, I've improved now. तो मुझे लगा कि अब मैं सिद्ध करूंगा कि मैं कितना अच्छा मृदंग वादक हूं। I can play for Maharaj. मैं मृदंग बजा सकता हूँ महाराज के लिए And Maharaj started singing 7-beat Rupakta. तो महाराज रूपक ताल बजाने लगे 7 बीट ताल Immediately, I put the mridanga away. फिर मैं मृदंग साइड में रख दिया। Maharaj came for a few Rath Yatras in South Africa. Rath Yatras. कुछ रथ यात्रा कार्यक्रम में महाराज वहाँ उपस्थित थे And one year we arranged that Maharaj could sing some bhajans with a full band. तो हमने एक बार ऐसा आयोजन किया कि पूरा बैंड हम लोग आयोजित करेंगे और महाराज उसमें कीर्तन करेंगे I played harmonium, we had a mridanga player. हमारे पास हारमोनियम मृदंग बजाने वाले My brother played kartals and sang. बलराम प्रभु करताल बजा रहे थे Then we also had musicians. We had tanpura, we had flute, we और had भी tabla. संगीतकार थे तानपुरा फ्लूट बांसुरी इत्यादि बजाने वाले And the day before the festival at Himanga Chaitanya Prabhu's house, और इससे 2 दिन पहले हिमांग प्रभु के घर पर we had a practice session. वहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेशन था And it was so wonderful to see that these musicians who weren't devotees immediately were attracted to Maharaj's mood. और वहाँ पर जो ये संगीतकार आए थे जो कि भक्त नहीं थे फिर भी गुरु महाराज के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गए Because it was very clear that Maharaj was very accomplished. और ये सिद्ध था कि महाराज जो कुछ भी करते थे उसमें दक्ष थे But it was also very clear that that was not the purpose. लेकिन फिर भी उनका ये एकमात्र उद्देश्य नहीं था Maharaj understood that chanting these mantras, chanting these bhajans, were bringing us closer to Krishna. उनका ये विश्वास था कि क्योंकि हम महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं वो हमें भगवान के समीप लाता है And it was very inspiring to see that these very accomplished musicians, in their own right, understood that as well. और गुरु महाराज की संगति में ये संगीतकार भी उस सिद्धांत को समझ गए जो कि एक बहुत बड़ी सिद्धि थी When Maharaj
then sang at Rath Yatra the next day. अगले दिन महाराज ने रथ यात्रा में गाया। He actually didn't sing much. उन्होंने ज्यादा नहीं गाया, He mainly spoke. उन्होंने केवल प्रवचन दिया। And I thought maybe the musicians would take offense that they did all this preparation and they didn't really have any service. मुझे लग रहा था कि ये जो बड़े-बड़े संगीतकार आए, ये सब बुरा मान जाएंगे कि उनको ज्यादा बजाने का मौका नहीं मिला। But watching them on stage, I could understand that they were also just as happy to be there and to listen to Maharaj. लेकिन उनको मैंने जो मंच पर बैठे हुए देखा तो मैंने देखा कि वो भी गुरु महाराज का प्रवचन सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। Maharaj just sing a few bhajans like Jaya Jaya Jagannath Sachiranandan Tribhuvane Kore Ja Charana Vandan. जैसे ये एक बहुत ही प्रचलित भजन है जय जय जगन्नाथ जो महाराज गा रहे थे। For another program, it was the 50th anniversary of ISKCON. दूसरा एक कार्यक्रम था जहाँ ISKCON की 50वीं वर्षगांठ थी। And myself and my brother and a few devotees, we sang Srila Prabhupada's bhajan Boro Kripa Kaile Krishna. तो मैं और मेरे भ्राता ने कुछ भक्तों ने मिलके प्रभुपाद का बड़ो कृपा कोइले भजन गाया। At that time we hadn't really heard it sung, and so we sang it to the tune of Boro Kripa Krishna. Which bhajan is it? So we sang this bhajan to a different tune. तो हमने ये भजन पहले किसी को गाते हुए नहीं सुना था, तो हमने एक दूसरी ट्यून लेकर के दूसरे भजन की ट्यून लेकर के इस भजन को गाया। And afterwards, when we were speaking to Maharaj, I was quite nervous. तो बाद में हम लोग बहुत डरे हुए थे जब महाराज से बात कर रहे थे। That we were speculating. कि हमने मनगढ़ंत कुछ कर दिया। But Maharaj was very happy. लेकिन महाराज बहुत प्रसन्न हुए। And he said he was very happy. Each person who was involved, he was commenting, because when he was listening, he wasn't just listening passively. He was listening to keep guiding us. तो जिससे भी वो मिल रहे थे इस भजन के बारे में उल्लेख कर रहे थे और हमें ये साक्षात्कार हुआ कि वो केवल सुनने के लिए नहीं सुन रहे थे, वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए सुन रहे थे। And through his guidance, we constantly improving. और उनके मार्गदर्शन से हम हर पद पर बेहतर होते जा रहे हैं। Maharaj's smile and his guidance together are a very powerful combo. तो उनकी मुस्कुराहट और उनका मार्गदर्शन दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। So maybe just to share some personal instructions. अब मैं कुछ व्यक्तिगत निर्देश बताना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे दिए। During the retreat, Maharaj was speaking about how Srila Prabhupada told him that for so many lifetimes you've been enjoying, and look at how much happiness you've gotten. तो रिट्रीट के समय महाराज बता रहे थे कि कैसे आप इतने सारे जीवन से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको आनंद नहीं मिला है। So just this one life you give to Krishna. केवल एक जीवन कृष्ण को दे दीजिए। And see what happens. और देखिए फिर क्या होता है। And so Maharaj then became very serious. और फिर महाराज बहुत गंभीर हो गए। And he looked at me. और मेरी तरफ देखे। And he said, "So Sankarshan, बोले संकर्षण, for so many lifetimes you've been trying to enjoy. बोले तुम बहुत सारे जीवन से आनंदित मजा करने का प्रयास कर रहे हो। So this one life you give to Krishna." ये एक जीवन कृष्ण को दे दो। I was quite nervous because I was just finishing school, about to enter college. मैं बहुत डर गया था क्योंकि मेरे स्कूल ही कंप्लीट हुआ था, कॉलेज में जाने वाला था। And I thought, is Maharaj asking me to join the temple? और यहाँ महाराज बोल रहे थे मंदिर में ज्वाइन कर लो। But later we took darshan with Maharaj, my parents and my brother, and he was asking, so what's going on? तो बाद में हम जब मिलने के लिए गए परिवार के साथ महाराज के साथ, And so I told him, Maharaj, I've got all these plans. तो मैंने अपने पूरे कार्यक्रम बताए महाराज को। And so the same day he said, okay, then it's better to get married. तो फिर उस दिन उन्होंने बोला ठीक है फिर तुम विवाह कर लो। And so from that I felt that Maharaj's mercy is always available. उससे मुझे एक अनुभव हुआ कि उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। If we can just take advantage of it, it's there. अगर हम केवल और केवल उसका लाभ उठाना सीख जाएं तो वो हमेशा हमारे साथ है। He was also very proud for the children. वो हमेशा बच्चों के लिए बड़ा गर्व महसूस करते थे। So when we finished school, he usually came around January, so we'd get our results. तो
वो सामान्यतः जनवरी के महीने में आया करते थे और उस समय हमारा रिजल्ट आता था। And he'd call us up and he'll tell everyone what our results are. तो फिर वो हमको बुलाते थे और सब भक्तों के सामने हमारा रिजल्ट पढ़ा करते थे। So in that way, he was so fatherly, showering us with so much affection. तो उनका स्नेह एक बिल्कुल पिता के जैसा हमारे ऊपर बरसता था। And then lastly, we all know Maharaj was an amazing cook. और अंत में महाराज बहुत ही अच्छे रसोई करते थे। I remember for Ekadasi, Maharaj made the cheese and tomato chutney. मुझे स्मरण है एकादशी पे उन्होंने चीज और टमाटर की चटनी बनाई। And it was so simple, you know. When you watch him make it, it seems so simple. और वो देखने में इतनी सरल लग रही थी। But when you taste it, it's something completely different. It's out of this world. लेकिन जब आप उसको स्वाद लेते हैं तब वो बहुत ही अलग स्वाद देती थी। Gurmaj called it bottomless pizza. Bottomless pizza. And so you can see, you know, prasad is not just ingredients but also consciousness. तो हम इससे समझ सकते हैं कि प्रसाद केवल अलग-अलग वस्तुओं को डालना नहीं है, लेकिन चेतना का भी असर प्रसाद बनाने वाले की चेतना भी उसमें जाती है। The last time I was with Maharaj, I stayed. It was during Los Angeles Rath Yatra in 2018. आखिरी समय में महाराज के साथ था 2018 में लॉस एंजलिस की रथ यात्रा में। Shyamlal Prabhu, who brought Maharaj to South Africa, श्यामलाल प्रभु जो महाराज को साउथ अफ्रीका लाए थे, his daughter lives in Los Angeles and married Neha. उनकी पुत्री वहाँ लॉस एंजलिस में रहा करती है। And so Maharaj stayed with them, and I was fortunate enough to also stay with them during the Rath तो Yatra. महाराज उन्हीं के घर में रुके थे और मैं भी वहाँ पर उनकी सेवा में था। And that was an experience like never before. और वहाँ पर जो मेरा अनुभव हुआ वो अभूतपूर्व था। In South Africa, Maharaj has very senior disciples, साउथ अफ्रीका में बहुत वरिष्ठ महाराज के शिष्य हैं। and so his mood is quite strict, वहाँ पर उनका स्वभाव बड़ा गंभीर रहा करता था and to get his association is difficult. और उनका संग प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ था। But in Los Angeles, Maharaj was taking care of us. लेकिन लॉस एंजलिस में महाराज हमारा ध्यान रख रहे थे। He was completely at home and so peaceful and so loving. वो एकदम शांत थे, स्वाभाविक थे, घर जैसे रह रहे थे। We were doing kirtan and he was in his room, and he came out of his room to say, "I'm sorry, I can't join you. I'm very busy." तो हम लोग बाहर कीर्तन कर रहे थे, महाराज अंदर कमरे में थे, तो एक दिन एक समय अपने आप बाहर आते हैं और बोलते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ कीर्तन में नहीं बैठ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी अन्य कार्य हैं। What do you say to that? अब हम उसका उत्तर कैसे देते हैं? Maharaj also wanted to cook, so he made lasagna. फिर उन्होंने हमारे लिए लसानिया बनाया And this is maybe a bit controversial. और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। We went to the supermarket to buy ingredients, तो हम लोग बाजार गए सामान खरीदने के लिए, and we picked up lasagna sheets. तो हम लोगों ने लसानिया शीट्स उठाई, And I looked at the ingredients and it said may contain traces of egg. तो हमने देखा उसमें कुछ अभद्र वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसा देखा। And so I told Maharaj, you know, may contain traces of egg. तो मैंने बताया कि ऐसा इसमें लिखा है महाराज कि हो सकता है इसमें कुछ अभद्र वस्तु हो। And so he took it and he put it in the trolley. उन्होंने लिया और ट्रॉली में डाल दिया। And he says that's just for legal purposes. उन्होंने बोला ये केवल लीगल पर्पसेस के लिए। So I also learned that Krishna consciousness has to be practical. मैंने ये भी सीखा कि कृष्ण भावनामृत में हमको व्यवहारिक होना भी सीखना चाहिए। His Holiness Kadambakana Maharaj also visited South Africa quite a lot. कदम्बकानंद स्वामी महाराज भी साउथ अफ्रीका बहुत बार आया करते थे And he made the point that we should focus on the big things, और वो बोलते थे कि हमें बड़े सिद्धांतों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। chanting our rounds, अपना जप गंभीरता से करना, following the regulative principles, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना and not over endeavor. और ना अति प्रयास ना करना। So when Maharaj made the lasagna, it was again very simple recipe. तो जब उन्होंने लसानिया बनाई बड़े ही सहज सरल विधि से बनाई। In the sauce of the chutney, he had olives, zucchini, eggplant, and carrot. तो जो उन्होंने सॉस बनाया था उसमें zucchini थी, बैगन था, capers थे और olives थे। And he made the bechamel sauce और उन्होंने फिर सफेद सॉस भी बनाया with flour and milk. जो कि मैदा और दूध से बनता है And he had a spinach and cream cheese layer also. और उसमें बीच में उन्होंने क्रीम चीज और पालक डाला And it's very simple spicing. It is salt, pepper, sugar, and और उन्होंने oregano. ज्यादा कुछ मसाले नहीं डाले, उसमें कुछ नमक, कुछ काली मिर्ची, यही मसाले डाले।
And again, all that together became something amazing. और लेकिन जब वो बन के तैयार हुआ तो अभूतपूर्व था। I lived in San Francisco, and my roommates had their friends over for Thanksgiving. तो जब मैं सैन फ्रांसिस्को में रह रहा था तो मेरे कुछ मित्र थैंक्सगिविंग के प्रोग्राम के लिए आए And there was a spread. There was a few preparations. और वहाँ पर बहुत सारे खाने के पदार्थ थे। And so I asked Janavi, Shyamal Prabhu's daughter, for the recipe for the lasagna. मैंने जानवी माता जी को जिनके घर में गुरुमा ने लसानिया बनाया था उनसे विधि पूछी And I made it. I और मैंने tried. वही विधि से लसानिया बनाया And that was the hit dish. और वो सबसे ज्यादा चर्चित वस्तु बन गई। So in that way, we are just so unbelievably fortunate to have the association of a perfect gentleman. तो हमारा भाग्य बड़ा अकल्पनीय है कि हमें ऐसे एक भद्र व्यक्ति परिशुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हुई। In the Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu says, Etradrisi tava kripa bhagavan mamapi durdevam idrisham mihajini anugura. तो शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि किस प्रकार मेरा अनुराग आपके हरिनाम में नहीं है। O my Lord, out of kindness you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. कि हे भगवान आपने अपने हरिनाम के माध्यम से हमें बड़ी सहजता से अपनी संगति प्रदान की है, लेकिन हम फिर भी उस हरिनाम के प्रति रुचि नहीं, अनुराग नहीं रखते। I feel the same way about my relationship with Bhakti Swami. मुझे महाराज के साथ, गुरु महाराज के साथ वही अनुभव होता है that He's made it so easy to approach Him. कि उन्होंने अपनी संगति इतनी सहजता से, सरलता से हमको दी। But I'm so fortunate that I can't appreciate it. लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उसका सराहना नहीं करते। So I humbly pray तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ that you wonderful devotees can please bless me. कि आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए So I can make Maharaj happy तो मैं किसी समय महाराज को खुश कर सकूं and always serve Him. And always serve Him. और हमेशा उनकी सेवा कर सकूं। Hare Krishna. हरे कृष्ण।